Hello everyone, welcome to Education Shiksha. Today we are going to discuss one shot education's marathon for CPET entrance exam. ଏହି ମ୍ୟାରାଥନ୍ରେ ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାରାଥନ୍ଟି ତୁମର ହେଲ୍ପ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। Okay, let's start. प्रथमे आमे कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन देखिबा। एजुकेशन कहले कोन तुमे तो जानि छ। देखो, द टर्म एजुकेशन रेफर टू नो और टू लर्न। ओके, हमें जानि छु कि एजुकेशन रो बेसिक्स मीनिंग्स हेउछि कि किछि जानिबा बा किछि शिक्षा करि। ओके, तेबे आमे दुईटी वे रे याकू बुझिबा पई ट्राई करिबा। प्रथमे देखिबा narrow meanings of education, then broader meaning of education. narrow meanings of education कहले कोन ना जेउ शिक्षाटी जेउ एजुकेशन टी विद्यालयर चारि कांथ मध्यरे दिया जाउछि ए प्रकार शिक्षा को ए प्रकार एजुकेशन को narrow meanings of education कहा जाउछि एवं जो शिक्षाटी विद्यालयर चारि कांथ बाहरे दिया जाउछि याकू ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन कहा जाउछि। ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन रे कोन कहा जाय परिबो कि हमें जानि छु कि शिक्षा हेउछि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस जेते बेले शिशुटी जन्म ग्रहण करि थाए सेही समयरु तार मृत्यु पर्यंत शिक्षण प्रक्रियाटी चाली। एही प्रोसेस रे व्यक्तिटी बा शिशुटी जीवनर प्रत्येक मुहूर्त रे किछि ना किछि शिक्षा ग्रहण करूछि। ए प्रकार शिक्षा को हमें ब्रॉडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन कहिबा एवं नैरो मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन रे केवल विद्यालय मध्य रे जो शिक्षा देउछि बा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस माध्यम रे जो शिक्षा दे जाउछि एहा को ही संकीर्ण अर्थ कहा जाबो। ओके, then view on education. एजुकेशन उपरे दुईटी व्यू दिया जाय अछि। गोटे होछि इंडियन व्यू रे एजुकेशन रो अर्थ कोन, देन वेस्टर्न व्यू रे एजुकेशन रो अर्थ कोन। जदि इंडियन व्यू रे देखिबा, इंडियन व्यू रे एजुकेशन शब्द को शिक्षा कहा जाउछि एवं एही शिक्षा शब्दटी संस्कृत शब्द सस रु आसी अछि एवं एही सस रो अर्थ होछि टू नो, टू टीच एंड टू डिसिप्लिन। देन वेस्टर्न व्यू रे कोन ना वेस्टर्न व्यू रे एजुकेशन शब्दटी तीनोटी लैटिन शब्द को नहीं गठित एडुकियर, एडुसियर एंड एडुकेटर। एडुकियर रो अर्थ होछि टू ट्रेन, टू राइज, देन एडुसियर रो अर्थ होछि टू ड्रॉ आउट, टू लीड आउट, देन एडुकेटम रो अर्थ होछि द एक्ट ऑफ टीचिंग, द एक्ट ऑफ ट्रेनिंग। इम्पोर्टेंट डेफिनेशन एजुकेशन उपरे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रही अछि। ए डेफिनेशन गुडी को तुमको मने रखिबा को पड़िबो। देखो, प्रथमे देइथिले गांधीजी। गांधीजी कोन कहउछंती, एजुकेशन इज ऑल राउंड ग्रोइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन मैन एंड चाइल्ड माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। गांधीजी का मतरे हेउछि शिक्षा कहिले
ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ରହିଅଛି ତାହାକୁ ବାହାର କରିବା, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ବାହାର କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, education is the manifestation of divine perfection already existing in man. Then Aurobindo, education is helping the growing soul to draw out that is in itself. Then Rousseau, development from within. Then Aristotle, education is creation of sound mind in a sound body. ଆରିଷ୍ଟୋଟଲଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ସୁସ୍ଥ ମନର ବିକାଶ କରିବା। ଦେନ୍ ଏମର୍ସନଙ୍କ ମତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଦ ମାଇଣ୍ଡ, ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା। ଦେନ୍ କେନ୍ସର, ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲିଭିଂ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା। ଦେନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛୁ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଧ୍ୟମ ରହିଅଛି। ସେ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି କନସେପ୍ଟ ହେଉଛି ୟୁନିପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ୍, ବାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ୍। ୟୁନିପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛି। ଦେନ୍ ବାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିଅଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟିଚର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର କମ୍ବିନେସନ୍ସରେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଜନ୍ ଆଡାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଟ୍ରାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଟିଚର, ଦେନ୍ କରିକୁଲମ୍। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଟିଚରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ଦେନ୍ କରିକୁଲମକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କଲେ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଟ୍ରାଇପୋଲାର ପ୍ରୋସେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଏଜୁକେସନ୍ର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଟାଇପ୍ସ ରହିଅଛି, ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍। ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍, ପିରିୟଡ଼, ପ୍ଲେସ୍ ଏବଂ ସିଲାବସ୍ ରହିଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହାଯିବ। ଏବଂ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ବା ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହାଯିବ। ଦେନ୍ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ନା ଏହାର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍, ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍, ଫିକ୍ସ ପିରିୟଡ଼, ସିଲାବସ୍ ଏବଂ ପ୍ଲେସ୍ ରହିନଥିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାକୁ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହାଯିବ। ଏବଂ ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମାସ୍ ମିଡ଼ିଆ, ଅବଜର୍ଭେସନ୍। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ନିଜ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହାଯିବ। ଦେନ୍ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ, ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଟି ହେଉଛି ଫର୍ମାଲ ଏବଂ ଇନଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ର କମ୍ବିନେସନ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଏହାକୁ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କୁହାଯିବ। ଏବଂ ଏହାର ଉଦାହରଣ ଏଡଲ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍, ଓପନ୍ ଏଜୁକେସନ୍। ଓକେ,
देन नेक्स्ट एजुकेशनल फिलोसफी देखिबो। अच्छा कहलो फिलोसफी कहले कौन? फिलोसफी कहले कौन ना गोटे व्यक्तिर बा गोटे इंडिविजुअल रो फंडामेंटल बिलीफ रो समाहार को फिलोसफी कहा जाउची। तार थॉट आइडिया रो समाहार को हमें फिलोसफी कहबा। ओके देन फिलोसफी कहले तो यह एजुकेशनल फिलोसफी कहले कौन? फिलोसफी को हमें एजुकेशन क्षेत्र रे प्रयोग करिबा तार एप्लीकेशन करिबा को एजुकेशनल फिलोसफी कहा जाउची। देखो फिलोसफी शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द को नहीं गठित फिलो एंड सोफिया। এই দুইটি গ্রিক ওয়ার্ডর কম্বিনেসন को ନେଇକି ଫିଲୋସୋଫିଆ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ଫିଲୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଭ୍ ଏବଂ ସୋଫିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱିଷ୍ଟମ୍। ଫିଲୋର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଭ୍ ଏବଂ ସୋଫିଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ୱିଷ୍ଟମ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫିଲୋସଫି କହିଲେ ବା ଫିଲୋସୋଫିଆ କହିଲେ ଲଭ୍ ଅଫ୍ ୱିଷ୍ଟମ୍କୁ ବୁଝାଏ ବା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଫିଲୋସଫିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫିଲୋସଫି କହିଲେ କ'ଣ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଫିଲୋସଫିକୁ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଦର୍ଶନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଟୁ ସି ଅର୍ ଟୁ ଭ୍ୟୁ। ଓକେ नेक्स्ट definitions of philosophy. Aristotle. According to Aristotle, philosophy is the science. Philosophy is the science which investigate the natures of being as it is in itself. Then Cicero. Philosophy is the mother of all art and true medicine of mind. Then Herbert Spencer. Philosophy is concerned with everything as a universal science. Next, Radhan Krishnan. Philosophy is logical inquiry into the natures of reality. ये सबू फिलोसफीर इंपोर्टेंट डेफिनेशन रही अछि याकू मन रखिबो। देन ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी। फिलोसफीर तीनोटी मुख्य ब्रांचेस रही अछि। प्रथम हेउछि मेटाफिजिक्स, देन एपिस्टेमोलॉजी, देन एक्जियोलॉजी। मेटाफिजिक्स टी काय सहित कंसर्न करे ना द नेचर्स ऑफ रियलिटी, द नेचर्स ऑफ एक्जिस्टेंस। फिलोसफी रो ब्रांचेस मध्यरे मेटाफिजिक्स हेउछि गोटे ब्रांचेस एवं एही ब्रांचेस टी कहा सहित कंसर्न करे ना नेचर्स ऑफ रियलिटी, नेचर्स ऑफ एक्जिस्टेंस। देन एही मेटाफिजिक्स टी आउ कहा सहित कंसर्न करे आउ कहा सहित जड़ित अटे ना मैन, वर्ल्ड एवं गॉड सहित यह जड़ित अटे। देन नेक्स्ट ब्रांच हेउछि एपिस्टेमोलॉजी। एही ब्रांच टी रो अर्थ कोन ना द स्टडी ऑफ द नेचर्स ऑफ नॉलेज। एही ब्रांच टी कहा सहित कंसर्न करे ना नॉलेज रो नेचर को अध्ययन करिबा, नॉलेज रो एप्लीकेशन करिबा सहित एही एपिस्टेमोलॉजी टी जड़ित अटे। देन एक्जियोलॉजी कहले कोन ना स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑफ वैल्यू। ओके वैल्यू सहित यह कंसर्न करि थाए एवं यह डिफरेंस वैल्यू रो अनेक गुडी इशू रहिछि सा सहित मध्य से डील करि थाए। ओके
देन आपण जानिलो मेटाफिजिक्स टी कोन ना रियलिटी सहित डील करे एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज सहित डील करे एक्सियोलॉजी वैल्यू सहित डील करे देन एक्सियोलॉजी को पुणी तीन भाग रे विभक्त करा जाय अछि लॉजिकल वैल्यू ethical value aesthetical value logical value कौन ना logical value deal with true value सहित यह deal करे then ethical value deal with good value then aesthetical value deal with beauty value ओके ये सब सहित डील करिथाय याको मने रखिबो तुमर क्वेश्चन आसी जिवो then next school of philosophy रे दुईटी इंपोर्टेंट स्कूल ऑफ फिलोसफी रही अछि इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी रे सांख्य फिलोसफी बुद्धिज्म जैनिज्म वेदांत देन वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी रे आइडियलिज्म्स रियलिज्म्स नेचुरलिज्म्स प्रैग्मेटिज्म्स इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी सांख्य फिलोसफी को शेख कपिल देइथिले शेख कपिल हेउचंती एहार फाउंडर सांख्य फिलोसफी रो फाउंडर एवं सांख्य फिलोसफी रो अर्थ हेउची डिवाइन ऑफ नॉलेज और परफेक्शन ऑफ नॉलेज देन बुद्धिज्म फिलोसफी रो फाउंडर हेउचंती सिद्धार्थ गौतम एवं यही बुद्धिज्म फिलोसफी रे निर्वाण पाई 8 फोल्ड पाथ देइथिला देन जैनिज्म फिलोसफी को 24 तीर्थकर डिफरेंट टाइम रे यार प्रचार एवं प्रमोशन करुथिले प्रथमे थिले ऋषभनाथ एवं ऋषभनाथ हेउचंती जैनिज्म फिलोसफी रो फाउंडर देन लास्ट तीर्थकर हेउचंती वर्धमान महावीर देन वेदांतर अर्थ हेउची दुईटी शब्द को नहीं गठित वेद एवं अंत एपरि भाबरे वेदांत सृष्टि एवं वेद अर्थ हेउची नॉलेज अंतर अर्थ हेउची एंड एपरि भाबरे वेदांत सृष्टि हैला एवं वेदांतर अर्थ हेउची नॉलेज रो अंत एवं एहार फाउंडर थिले वज्रयाना ओके देन बुद्धिज्म फिलोसफी रो 8 फोल्ड पाथ कोन रही अछि राइट टू बिलीव राइट टू मेमोरी राइट टू स्पीच राइट टू थॉट राइट टू मेडिटेट राइट टू एफर्ट राइट टू कंडक्ट राइट टू एक्शन एवं बुद्धिज्म फिलोसफी रे दुईटी इंपोर्टेंट सेरिमनी पालन करा जाउतला गोटे होउची पब्जा सेरिमनी होउची गोटे एलिमेंटरी एजुकेशन को जो समय रे से माने एडमिशन करूथिले बा मोनेस्ट्री एजुकेशन को जो समय रे से माने एडमिशन करूथिले सेही समय रे से माने पब्जा सेरिमनी पालन करूथिले एवं यह 12 वर्ष पर्यंत पालन करा जाउथला आफ्टर 20 ईयर ऑफ एज जेतेबेले शिशु को बा चाइल्ड को 20 वर्ष हो जाउथला से उप संपदर रिचुअल पालन करूथला एवं से हायर एजुकेशन को से एंट्री करूथला ओके देन वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी मध्य रे आइडियलिज्म रियलिज्म नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म रही अछि आइडियलिज्म रो फाउंडर हेउचंती प्लाटो हेउचंती आइडियलिज्म रो फाउंडर एवं आइडियलिज्म कोन सहित कंसर्ट होइथाय ना अल्टीमेट सुप्रीमेंसी इज आइडिया
ଏହା ଆଇଡିଆ ସହିତ କନସର୍ନ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ରିଏଲିଜିମ୍ ର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଏବଂ ଏହା ମ୍ୟାଟର ଇଜ୍ ରିଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁ, ଏହା ମ୍ୟାଟର ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଥାଏ, ରିଏଲିଟି ସହିତ ଏହା ଡିଲ୍ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ସର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ରୁସୋ ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ନେଚର। ଏହା ନେଚର୍ସକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ନେଚର ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ସର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ସିବି ସ୍ପିୟର୍ସ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ସ କାହା ସହିତ କନସର୍ନ କରିଥାଏ? ଏକ୍ସନ୍, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଏକ୍ଟିଭିଟି ଏସବୁ ସହିତ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜିମ୍ କନସର୍ନ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଥିଙ୍କର ମାନେ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ନିଜର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ଏମ୍.କେ. ଗାନ୍ଧୀ। ଏମ୍.କେ. ଗାନ୍ଧୀ 20 ଅକ୍ଟୋବର 1869ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ୱାର୍ଦ୍ଧା ଏଜୁକେସନକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ ଏଜୁକେସନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନ ଏବଂ ୱାର୍ଦ୍ଧା ଏଜୁକେସନ 1937ରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି କମିଟି ବା ଏହି କମିଶନର ଚେୟାରପର୍ସନ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜାକିର ହୁସେନ। ଦେନ୍ ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1872ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ଦେନ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ସେ ମେ 6, 1861ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ 1937ରେ ସେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିନିକେତନ, ବିଶ୍ୱଭାରତୀ ଦୁଇଟି ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ସେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 12 ଜାନୁଆରୀ 1863ରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଥିଲା ମେନ୍ ମେକିଂ ଏଜୁକେସନ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଏଜୁକେସନାଲ ସୋସିଓଲୋଜି। ଏଜୁକେସନାଲ ସୋସିଓଲୋଜି କହିଲେ କ'ଣ ଦେଖିବା। ବେସିକାଲି ସୋସିଓଲୋଜି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୋସିଓଟସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଲୋଗସ୍। ଏହିପରି ଭାବରେ ସୋସିଓଲୋଜି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି ଏବଂ ସୋସିଓଟସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୋସାଇଟି, ଲୋଗସ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାଇନ୍ସ ଏବଂ ସୋସିଓଲୋଜି କହିଲେ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି ବା ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସୋସାଇଟି। ସୋସାଇଟି ଭିତରେ ଯିଏ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ତାକୁ ସୋସିଓଲୋଜି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସୋସିଓଲୋଜି ହେଉଛି ସୋସାଇଟିର ବିଜ୍ଞାନ। ତେବେ ସୋସିଓଲୋଜିର ଫାଦର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ନା ସୋସିଓଲୋଜିର ଫାଦର ହେଉଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ଟେ। ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ଟେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଦର ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜି। ଦେନ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ସୋସିଓଲୋଜି କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଜର୍ଜ ପେନି। ଜର୍ଜ ପେନି ହେଉଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନାଲ ସୋସିଓଲୋଜିର ଫାଦର। ଏଜୁକେସନାଲ ସୋସିଓଲୋଜି କହିଲେ କ'ଣ? ନା ସୋସିଓଲୋଜିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ସ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ଲ ରହିଅଛି ତାକୁ ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲେ, ତାକୁ ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଷ୍ଟଡି କରାଗଲେ ଏହାକୁ ଏଜୁକେସନାଲ ସୋସିଓଲୋଜି କୁହାଯାଉଛି। ଦେନ୍ କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ। ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ? ନା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ସ ରେଫର ଟୁ change in material element, also the beliefs of the peoples, their value and the way of life as a whole.
मॉडर्नाइजेशंस ହେଉଛି ଗୋଟିଏ कंटिन्यूअस प्रोसेस एवं मॉडर्नाइजेशंस कहले सोसाइटी रे चेंज को बुझाए एवं यही परिवर्तन किपरि होई पारे ना मटेरियल्स एलिमेंट रे होई पारे लोकंकर बिलीफ रे होई पारे लोकंकर वैल्यूज रे होई पारे एवं तांको जीवन रे परिवर्तन ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ए प्रकार परिवर्तन को मॉडर्नाइजेशंस कुहाଯାଉଛି मॉडर्नाइजेशन बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर रे होई पारे लोकंकर वैल्यू रे होई पारे सोशल नॉर्म रे होई पारे कल्चर रे होई पारे डिफरेंट डिफरेंट वे रे यह होई पारे देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहले कोन ना स्ट्राटा होची गोटे लेवल स्टार्टर अर्थ होची लेवल आमे सोसाइटी रे डिफरेंट डिफरेंट लेवल रे सृष्टि करि अछु डिफरेंट डिफरेंट लेवल अनुसार डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी करा जायछि कल्चर्स रही अछि लोकंकर इनकम रही अछि ये सब स्तर रे आमे बा सोसाइटी रे ये सब क्षेत्र रे आमे गोटे गोटे स्ट्राटा बा लेवल देखिबाकू पाइछु ए प्रकार लेवल देखिबाकू आमे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहबा ताहा लेवल रे होई पारे कास्ट सिस्टम होई पारे कल्चर्स रे होई पारे लोकंकर इनकम रे होई पारे एजुकेशंस रे होई पारे यह प्रत्येक क्षेत्र रे आमे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राटा बा लेवल देखिबाकू पाउछु देन सोशल मोबिलिटी कहले कोन ना सोसाइटी गोटे मोबिलिटी को फॉलो करे बा गतिशील अटे सोसाइटी सर्वदा गतिशील अटे से गोटे स्थान रे केबे भी फिक्स रहे ना से केबे अपवर्ड को जाए तो केबे डाउनवर्ड को जाए लोकंकर इनकम बढ़ी गले से अपवर्ड को जाउछंती जने धनी व्यक्ति बैंकरप्ट हेले किंबा आउ किछि तार डिजास्टेशन आसिले से डाउनफॉल आसी अछि एई प्रकार सोसाइटी रे सर्वदा मोबिलिटी चली थाए याको सोशल मोबिलिटी कहा जाउछि देन नेक्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशनल साइकोलॉजी कोन देखिबा concept of psychology साइकोलॉजी दुईटी ग्रीक शब्द को नहीं गठित साइकी एंड लोगस साइकी कहले सोल एवं लोगस कहले साइंस एपरी भाबरे साइकोलॉजी कहले साइंस ऑफ सोल को बुझाए देन साइकोलॉजी को डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स रे बा डिफरेंट डिफरेंट पीरियड रे डिफरेंट डिफरेंट अध्ययन बोलिकी कहा जाय अछि सर्वप्रथमे साइकोलॉजी को साइंस ऑफ सोल बोलिकी कहा गला एवं एही समय रे एहार सपोर्टर थिले प्लाटो अरिस्टोटल देन नेक्स्ट एहाकू साइंस ऑफ माइंड बोलिकी कहा गला साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड रो अध्ययन बोलिकी कहा गला देन एही समय रे किए थिले ना विलियम्स जेम्स एहार सपोर्टर थिले देन नेक्स्ट साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस बोलिकी कहा गला एही समय रे विलियम हेल ओन थिले एहार सपोर्टर देन मॉडर्नाइजेशन समय रे याकू कोन कहा गला ना साइंस ऑफ बिहेवियर बोलिकी कहा जाउछि एबे मध्ये याकू ग्रहण करा जाउछि एवं एही समय रे सपोर्टर थिले जेबी वाटसन देन स्कूल ऑफ साइकोलॉजी साइकोलॉजी रो तीनोटी मुख्य स्कूल रही अछि बिहेवियरल स्कूल कॉग्निटिव स्कूल एंड साइको एनालिटिक स्कूल बिहेवियरल स्कूल कहले कोन ना जेउ स्कूल रे इंडिविजुअल रो बिहेवियर को अध्ययन करा जाय कॉग्निटिव स्कूल कहले जेउ स्कूल रे शिशुर बा इंडिविजुअल रो कॉग्निशन को स्टडी करा जाय देन साइको एनालिटिकल स्कूल कहले कोन जेउ स्कूल रे स्ट्रक्चर ऑफ साइकी को पढ़ा जाय एवं बिहेवियरल स्कूल को के देथिले ना जेबी वाटसन थिले यार सपोर्टर बिहेवियरल स्कूल रो सपोर्टर थिले जेबी वाटसन एवं यह स्टडी ऑफ बिहेवियर को बुझाए देन कॉग्निटिव स्कूल रो फाउंडर के थिले बा सपोर्टर के थिले स्किनर पियाजेट
एवं यह कौन अध्ययन करे ना स्टडी ऑफ कॉग्निशन। देन साइको एनालिटिक साइकोलॉजी यार फाउंडर होचंती सिगमंड फ्रॉइड एवं यही साइको एनालिटिक स्टडी कौन करिथाय ना स्ट्रक्चर ऑफ साइको को पढ़िथाय। एजुकेशनल साइकोलॉजी कहली कौन ना साइकोलॉजी रो एक इम्पोर्टेंट ब्रांच अच्छे यह एवं यही ब्रांच रे कौन करे ना स्टडी ऑफ बिहेवियर इंडिविजुअल रो बा लर्नर रो स्टडी ऑफ बिहेवियर को पढ़े बिहेवियर को स्टडी करे एवं यही बिहेवियर ऑफ स्टडी क्यों क्षेत्र रे करे ना शिक्षा क्षेत्र रे करिले याको आमे एजुकेशनल साइकोलॉजी कहबो। जो ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी लर्नर रो बिहेवियर को शिक्षा क्षेत्र रे अध्ययन करे याको एजुकेशनल साइकोलॉजी कहा जाउछि। आमे डेफिनेशन देखिबा स्किनर स्किनर कहउचंती एजुकेशनल साइकोलॉजी is the branch of psychology which deal with teaching and learning। एजुकेशनल साइकोलॉजी होची साइकोलॉजी रो गोटे ब्रांच एवं जो टाके टीचिंग एंड लर्निंग सहित कंसर्न करते। देन क्रू एंड क्रू कहउचंती एजुकेशनल साइकोलॉजी describe and explain learning experience of an individual from birth to old age। एजुकेशनल साइकोलॉजी describe एवं explain करे कौन ना लर्निंग प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल गोटे इंडिविजुअल रो लर्निंग प्रोसेस को describe एवं explain करे केबे ठारू ना जन्म ठारू ओल्ड एज पर्यंत। देन ELP एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ एजुकेशन। ओके ओके नेक्स्ट concept of growth and development। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आमे साधारणतः समान अर्थ व्यवहार करिथाउ किंतु एमानक मध्यरे डिफरेंस रही अछि। ग्रोथ होची गोटे फिजिकल एस्पेक्ट एवं डेवलपमेंट होची टोटल एस्पेक्ट बा ओवरऑल एस्पेक्ट को बुझाए। देन एमानकर डिफरेंस कोन रहिछि देखो ग्रोथ होची फिजिकल चेंज इन ऑर्गेनिज्म एंड डेवलपमेंट होची ओवरऑल एंड प्रोग्रेसिव चेंज इन ऑर्गेनिज्म। अर्थात गोटे व्यक्ति बा गोटे इंडिविजुअल रो फिजिकल चेंजेस को हमें ग्रोथ कहबा एवं तारो समग्र चेंजेस बा ओवरऑल प्रोग्रेस को हमें डेवलपमेंट कहबा। ग्रोथ होची क्वांटिटेटिव एवं डेवलपमेंट होची बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ग्रोथ एक कंटीन्यूअस प्रोसेस नुहे एवं डेवलपमेंट होची गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस। ग्रोथ टी मैच्योरेशन पर्यंत ही यह जाई थाए बा चली थाए एवं मैच्योरेशन परे यह बंद हो जाए किंतु डेवलपमेंट गोटे कंटीन्यूअस प्रोसेस अटे यह जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अनवरत भाव में चली थाए। देन प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अनेक गुड़ी प्रिंसिपल रही अछि ता मध्यरु प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हेउछि एक इंपोर्टेंट प्रिंसिपल। यही प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहले कोन ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस अटे। यही प्रोसेस टी शिशुर बा इंडिविजुअल रो जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत अनवरत भाव में चली थाए एवं तार डेवलपमेंट अनवरत भाव में होई थाए। देन प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न कहले कोन ना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गोटे यूनिफॉर्मिटी पैटर्न को फॉलो करे। केमिति ना प्रथमे चाइल्ड पीरियड आसे देन एडल्ट पीरियड आसे देन ओल्ड एज आसे यही यूनिफॉर्मिटी पैटर्न से फॉलो करूची पृथ्वीर प्रत्येक क्षेत्र रे समान पैटर्न हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रो देखिबा को पाउछु। देन रेट ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म कोन ना यूनिफॉर्मिटी पैटर्न से फॉलो करूची किंतु इंडिविजुअल डिफरेंस रो कांसेप्ट एठारे आसुची कि प्रत्येक व्यक्तिकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफरेंट रेट रे होई थाए। ओके
देन प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन करे ना प्रथम जनरल एस्पेक्ट को ग्रोथ करे देन स्पेसिफिक एस्पेक्ट को से जाई था देन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन कहले कौन प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन से होची समस्त को ये नहीं की चले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सब क्षेत्र को डेवलपमेंट बा ग्रोथ करे बॉडी रो जो पार्ट रही अछि मेंटल रो जो एस्पेक्ट रही अछि समस्त क्षेत्र को से इंटीग्रेशन भाव में नहीं की मिलित भाव में नहीं की से चली था देन पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो अनेक गुड़े थ्योरी रही अछि ता मध्यरु पियाजेट कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी तुम पाई इंपोर्टेंट अटे एवं पियाजेट डेवलपमेंट बा कॉग्निटिव डेवलपमेंट रो चारोटी इंपोर्टेंट स्टेज देइजंती प्रथमे होची सेंसरी मोटर स्टेज यह 0 to 2 ईयर पर्यंत देन प्री ऑपरेशनल स्टेज यह 2 to 7 ईयर पर्यंत देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यह 7 to 11 ईयर पर्यंत देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज यह 11 to एडल्टहुड पर्यंत सेंसरी मोटर स्टेज रे कोन होइथाय ना चाइल्ड की ऑब्जेक्ट परमानेंसी थाए शिशु पर्यंत जे पर्यंत ता पाखरे ऑब्जेक्ट रही से जानबो कि ये ऑब्जेक्ट एठारे रही अछि देन सेंसर आर टीचर ए पीरियड कोन से शिशुटी निजर फाइव सेंस जो रही अछि से सेंस अनुसार से शिक्षा ग्रहण करे देन प्री ऑपरेशनल स्टेज होची इगोसेंट्रिक थॉट आसी थाए से निजो को ही सर्वप्रथमे रखि थाए देन इमिटेशंस करि थाए अन्य मन को देखि से इमिटेशंस करे देन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज रे कोन आसे लॉजिकल थिंकिंग तार डेवलप होई थाए देन पैटर्न एंड सीरीज से डेवलपमेंट करि पारि थाए देन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हेउची सबटरु हाईएस्ट स्टेज ए स्टेज रे शिशु पाखरे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आसे देन से कौन सी गुटे सिचुएशन को हाइपोथेटिकली से रीजनिंग करि पारे ये सब यही स्टेज गुड़िकर फ्यूचर अटे या को मन रखिबो देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंट कौन देखिबो इंटेलिजेंट कहले कौन रे ना साधारण भाव में इंटेलिजेंट कहले हमें गोटे बुद्धिमान व्यक्ति को बुझाए एवं यही इंटेलिजेंट शब्दटी लाटिन शब्द इंटेलिजियर रु आसी अछि इंटेलिजेंट शब्दटी लाटिन शब्द इंटेलिजियर रु आसी अछि एवं यही इंटेलिजियर अर्थ हेउछि टू अंडरस्टैंड बुझिबा जो व्यक्ति पाखरे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करबा पई एबिलिटी थिबो कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करबा पई एबिलिटी थिबो न्यू नॉलेज को एक्वायर करिवारो एबिलिटी थिबो ए प्रकार एलिमेंट जहाँ पाखरे देखा जाए आपको हमें इंटेलिजेंट व्यक्ति कहबो एवं ए सबु अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग न्यू नॉलेज को एक्वायर करिवारो एबिलिटी ए सबु इंटेलिजेंस रो गोटी गोटी इंपोर्टेंट एलिमेंट अटे देन बिनेट इंटेलिजेंट ऊपर कौन कहते देख अकॉर्डिंग टू बिनेट द कैपेसिटी टू जज वेल टू रीजन वेल एंड टू कम्प्रिहेंड वेल गोटे व्यक्ति पाखरे जज को भल भाव कर कैपेसिटी रीजनिंग कर कैपेसिटी कम्प्रिहेंड कर एबिलिटी जदि रही अछि ताकू इंटेलिजेंट कहजिवो एहा अल्फ्रेड बिनेट कहिथिले देन अकॉर्डिंग टू टर्मेन कौन कहते इंटेलिजेंट इज एबिलिटी टू थिंक इन टर्म ऑफ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को चिंता कर एबिलिटी को इंटेलिजेंट कहा जाए अकॉर्डिंग टू टर्मेन देन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस रो अनेक गुडी थ्योरी रही अछि आमे किए देइतिले ता ऊपर देखिबा ये सब को पढ़िबा पई हम पखरे समय नाही अन्य के भी आमे याको गोटे गोटे थ्योरी को भलो भाव में पढ़िबा देखो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यह इंटेलिजेंस थ्योरी एक इंपोर्टेंट थ्योरी अटे यह थ्योरी टी चार्ल्स प्यूरमैन देइतिले
देन टायरार्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस याकू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग देइछंती। देन स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस बा एसआई मॉडल को आजे याकू जेबी गिलफोर्ड देइछंती। देन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के देइछंती ना हावर्ड गार्डनर देइछंती। देन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी रो इंपोर्टेंस टाइप्स होछि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, आनेस्टिक इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये प्रकार डिफरेंट डिफरेंट इंटेलिजेंस टाइप रही जहाँकि मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी रे यहाँ को दर्शा जाउछि एवं एई थ्योरी टी के देथिले ना हावर्ड गार्डनर्स देथिले। नेक्स्ट क्रिएटिविटी, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कहले कौन रे कि जो व्यक्ति पाखरे कौनसी नूतन सृष्टि करिवार एबिलिटी को ही क्रिएटिविटी कहा जाए। क्रिएटिविटी क्षेत्र में आइडिया होई पारे, इन्वेंशन होई पारे, कौनसी प्रॉब्लम रो सॉल्यूशंस होई पारे। ये प्रत्येक क्षेत्र में नूतनता सृष्टि करिवार एबिलिटी को क्रिएटिविटी कहा जाए। यही क्रिएटिविटी रो मुख्य एलिमेंट होछि फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनालिटी। ये तीनोटी रो कॉम्बिनेशंस रे क्रिएटिविटी सृष्टि होए। गोटे व्यक्ति पाखरे फ्लुएंसी थिबा दरकार, फ्लेक्सिबिलिटी थिबा दरकार, ओरिजिनालिटी थिबा दरकार, जेबे जाई से क्रिएटिविटी सृष्टि करि परिबो। क्रिएटिविटी सृष्टि करिवार चारोटी मुख्य स्टेज रही अछि। प्रथम हेउछि प्रिपरेशन स्टेज, सेकेंड हेउछि इनक्यूबेशन स्टेज, थर्ड हेउछि इल्यूमिनेशन स्टेज, देन फोर्थ हेउछि वेरिफिकेशन स्टेज। प्रिपरेशन स्टेज रे कोन करिथाय आमे कोनोसी प्रॉब्लम रही तार समाधान करबा पई चाहूछु। ता पई जो डाटा रिक्वायर होते ताको आमे गैदर करबा, कलेक्ट करबा। ए पीरियड को आमे प्रिपरेशन स्टेज कहूछु। देन इनक्यूबेशन स्टेज कोन आमे डेटा को कलेक्ट कला, इनफॉरमेशन को कलेक्ट कला, गैदर कला, तापरे आमे किछि समय पई रही जाउछु, ताकू किसी समय पई स्पेस दउछु। ए समय को इनक्यूबेशन कहूछि। ए पीरियड रे आमे बारंबार ट्राई करूथकु सेही प्रॉब्लम टी को सॉल्व करबा पई। देन जेबे आमे प्रॉब्लम टी को सॉल्व कर देउछु सेही समय को इल्यूमिनेशन स्टेज कहा जाए। यह को आहा मोमेंट मन कहा जाए। ए मोमेंट पर आमे कोन करूछु ना वेरिफिकेशन करूछु। वेरिफिकेशन कोन जो सॉल्यूशन टी आमे पाइछु, जो समाधान टी आमे पाइछु ताहा अन्य मन को पई हेल्पफुल होते ना नाही, ताहा अन्य मन को काम देउछि ना नाही, याकू वेरिफिकेशन करबा, याकू जनरलाइजेशन करबा को ए पीरियड टू आमे वेरिफिकेशन सन स्टेज कहा जाउछि। नेक्स्ट लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग एंड लर्निंग प्रोसेस कहले कौन कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्निंग कहले कौन ना शिक्षा करने को बुझाऊछि। लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग से होछि बिहेवियर रे परमानेंट चेंज आनिबा। मीन्स बिहेवियर रे परमानेंट चेंज करने को लर्निंग्स कहा जिवो। अकॉर्डिंग टू किम्बल, किम्बल कौन कहते देखो, learning is relatively permanent change in behavior potentially that occur as a result of reinforced practice. Then, according to Murphy, the term learning covers every modifications in behavior to meet environmental requirement. Learnings cover करे environmental रो requirement रो
ଅନୁସାରେ ବିହେଭିଅରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ କୁହାଯିବ। ଏହା ମୋର୍ଫେ କହିଛନ୍ତି ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ ହେଉଛି ଆମେ ବିହେଭିଅରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା, ଆମର ବିହେଭିଅରରେ ମଡିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ କୁହାଯିବ। ଥିଓରି ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଥିଓରି ରହିଅଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଥିଓରି ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଥିଓରି। ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଥିଓରି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଥିଓରିକୁ E.L. ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ SR ଥିଓରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ E.L. ଥର୍ଣ୍ଣଡାଇକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସେ କ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଏହାକୁ ଇଭାନ ପି ପାଭଲଭ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଡଗ୍ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଓପରେଣ୍ଟ କଣ୍ଡିସନିଂ, ଏହାକୁ B.F. ସ୍କିନର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରେଡ୍ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ମଡେଲ, ଏହାକୁ କଲ୍କ ହଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଇମେରୀ ନିଡ୍ସ ଉପରେ ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରାଇମେରୀ ନିଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ନିଡ୍ସ। ପ୍ରାଇମେରୀ ନିଡ୍ସରେ ଆମର ଯେଉଁ ବେସିକ୍ସ ନିଡ୍ସ ରହିଛି ତାହାକୁ ବୁଝାଯିବ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ନିଡ୍ସରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ନିଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଯାହା ରହିଲା ତାହାକୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ନିଡ୍ସ କୁହାଯିବ। ଦେନ୍ ଗେନେ ଥିଓରି ଅଫ୍ ହାଇରାର୍କିକାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍। ଗେନେ ହାଇରାର୍କିକାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଏଠାରେ 8 ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ହାଇରାର୍କିରେ ଲେଭେଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସିଗ୍ନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍, ଦେନ୍ SR ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍ ବା ସ୍ଟିମୁଲସ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଚେନିଂ, verbal association, discriminations learning, concept learning, role learning and problem solving। ଗେନିଙ୍କର ହାଇରାର୍କିକାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂସରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ସିଗ୍ନାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂସ୍। ଦେନ୍ ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଜୁକେସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ସ। ଏଜୁକେସନାଲ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍ସ କହିଲେ କ'ଣ? ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସର ଏଚିଭମେଣ୍ଟ ରହିଅଛି, ସେଇ ଏଚିଭମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଦର୍ଶାଉଛୁ ବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ଏଚିଭମେଣ୍ଟରେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟେଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁର ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କହିବା। ଦେନ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଉଅଛି ଆସେସମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଭ୍ୟାଲୁକୁ ଯଦି ଏଡ୍ କରୁଛୁ ତାହାକୁ ଆମେ ମେଜରମେଣ୍ଟ କହିବା। ଦେନ୍ ଇଭାଲୁଏସନ୍ସ କ'ଣ? ମେଜରମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଭ୍ୟାଲୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଗୁଡ୍ କି ବ୍ୟାଡ୍ ବୋଲିକି ଦର୍ଶାଉଛୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ସ କହିବା। ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ। ସ୍କେଲ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଚାରୋଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସ୍କେଲ୍ ପଢ଼ିଥାଉ। ନମିନାଲ ସ୍କେଲ୍, ଅର୍ଡିନାଲ ସ୍କେଲ୍, ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସିଓ ସ୍କେଲ୍। ନମିନାଲ ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ? ଆମେ ଜଷ୍ଟ ନେମ୍ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଦର୍ଶାଇବା। ଦେନ୍ ଅର୍ଡିନାଲ ସ୍କେଲ୍, ନେମ୍ ସହିତ ଆମେ ଅର୍ଡରଲି ତାହାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ବା ର୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସ୍କେଲ୍ରେ କ'ଣ? ନେମ୍ ସହିତ ର୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ତାହାକୁ ଦୁଇଟି ସମାନ ଇଣ୍ଟରଭାଲରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିବା। ଦେନ୍ ରେସିଓ ସ୍କେଲ୍ରେ ନମିନାଲ, ଅର୍ଡିନାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରଭାଲର ସମସ୍ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଅଛି ଏବଂ ଏହି ସ୍କେଲରେ ଏବ୍ସଲ୍ୟୁଟ୍ ଜିରୋ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। Then type of assessment and evaluation. Assessment and evaluations types रे आमे चारोटी इंपोर्टेंट टाइप्स को पढ़ी थाउ। गोटे होची फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक्स एंड प्लेसमेंट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस बा असेसमेंट कहले कोन ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस समय रे जेउ असेसमेंट करा जाय
ताकू फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाए एवं यह टीचिंग लर्निंग ड्यूरिंग टाइम रे होई थाए। देन समेटिव असेसमेंट कहले कोन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो एंड रे बा शेष रे जो असेसमेंट करा जाए ताकू समेटिव असेसमेंट कहा जाए। देन नेक्स्ट डायग्नोस्टिक असेसमेंट कोन जो असेसमेंट रे शिशुर एबिलिटी को जानिबा पाई शिशुर नीड कोन रही जानिबा पाई असेसमेंट करा जाए बा डायग्नोस करिया जाए ताकू डायग्नोस्टिक असेसमेंट करा जाए। देन प्लेसमेंट असेसमेंट कोन ना आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे हमें जॉब प्रोवाइड करूछु बा कैरियर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूछु ए प्रकार असेसमेंट को हमें प्लेसमेंट असेसमेंट कहबा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट गोटे भल टेस्ट हेबा पई तार कैरेक्टरिस्टिक कोन रहबा उचित ना सेही टेस्ट टी रियलेबिलिटी हेबा उचित सेही टेस्ट टी वैलिडिटी हेबा उचित देन सेही टेस्ट टी ऑब्जेक्टिविटी रहितबा उचित देन सेही टेस्ट टी यूजेबिलिटी रहितबा उचित। गुड टेस्ट रे रियलेबिलिटी कहले कोन आम बारंबार से समान रिजल्ट प्रोवाइड हमको करूथबो। देन वैलिडिटी आम जहाँ मेजर करबा पई करूछु जहाँ जदि हमको मिलुछि तेबे ताको आम वैलिडिटी कहबा। ऑब्जेक्टिविटी आमर ऑब्जेक्टिविटी कोन रहितला ए टेस्ट प्रस्तुत करबा पई ताहा जदि फुलफिलमेंट हेउछि तेबे सेही टेस्ट को आम गोटे गुड टेस्ट कहबा। यूजेबिलिटी यूजेबिलिटी कहले कोन ना सेही टेस्ट टी समस्तनको पई यूजेबल होइतबो। ओके तेबे जे आम ताको गोटे गुड टेस्ट कहि परिबो। ए सबु चारोटी गोटे गुड टेस्ट रो इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक गोटे। देन एजुकेशनल रिसर्च कोन देखिबा। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च बेसिकली दुईटी शब्द को नहीं गठित री एंड सर्च। री रो अर्थ हेउछि अगेन एंड अगेन एवं सर्च रो अर्थ हेउछि टू एक्सप्लोर। एपरि भाबरे रिसर्च कहले प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग फेनोमेना अगेन एंड अगेन बा यह एक प्रक्रिया अटे जोठारे कि फेनोमेना को बारंबार अध्ययन करबा ऑब्जर्व करबा को बुझाए। अकॉर्डिंग टू मोली educational research is the systematic applications of scientific method for solving educational problem। educational problem को solve करबा पाई scientific method रो प्रयोग और systematically प्रयोग को educational research को आजिबो। टाइप ऑफ रिसर्च रो तीनोटी मुख्य टाइप्स रही अछि फंडामेंटल एप्लाइड एक्शन। रिसर्च रो तीनोटी मुख्य टाइप्स होछि फंडामेंटल एप्लाइड एक्शन। फंडामेंटल रिसर्च रे कोन रही अछि फंडामेंटल रिसर्च को प्योर रिसर्च कहा जाय एवं एही रिसर्च रो कार्य होछि कि फॉर्मुलेशंस ऑफ थ्योरी एंड लॉ। यही रिसर्च कोन करिथाय ना थ्योरी एवं लॉ को फॉर्मुलेशंस करिथाय एवं यार मुख्य नेचर होछि कि डिस्कवरी ऑफ नॉलेज को यह डिस्कवर करिथाय। देन एप्लाइड रिसर्च यह रिसर्च रे एक इंपोर्टेंस टाइप अटे। ए रिसर्च रे साइंटिफिक मेथड रे इंक्वायरी करा जाय एवं एप्लीकेशंस ऑफ लॉ एंड प्रिंसिपल। फंडामेंटल रिसर्च जो लॉ प्रिंसिपल थ्योरी डिस्कवर करिथिबो ताकू से प्रयोग करे ताकू एप्लीकेशन करे। देन एक्शंस रिसर्च कोन करे ना लोकल प्रॉब्लम को से स्टडी करे एवं यह मोर यूजफुल अटे एवं यही प्रोसेस कोन करा जाय ना सिस्टमैटिक वे रे याकू करा जाय थाए। देन स्टेप इन रिसर्च करिबारे अनेक गुडे स्टेप रही अछि ता मध्यरु मुख्य स्टेप गुड़िक हेउछि प्रथमे आमे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम को हमें आइडेंटिफाई करिबा। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर
ता रिलेटेड आम रिव्यू करवा आगु जो रिसर्च करा आम रिव्यू करवा देन फॉर्मुलेशंस ऑफ हाइपोथेसिस थर्ड रे आम फॉर्मुलेशंस करवा ना कौन हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेशंस करवा देन फोर्थ रे आम मैनिपुलेशंस एंड कंट्रोलिंग करवा देन लास्ट स्टेज होची रिसर्च डिजाइन देन आम रिसर्च डिजाइन करवा देन मेथड ऑफ रिसर्च रिसर्च रो मेथड गुड़िक मध्य सर्वे मेथड रही केस स्टडी मेथड रही हिस्टोरिकल मेथड रही एक्सपेरिमेंटल मेथड रही सर्वे मेथड आम सर्वे द्वारा डेटा कर रिसर्च कर केस स्टडी आम इन डिटेल्स कौन सी गोटे फेनोमेना बा इंडिविजुअल को पढ़ी था हिस्टोरिकल मेथड आम पास्ट इवेंट को पढ़ी था देन एक्सपेरिमेंटल आम साइंटिफिक बा सिस्टमेटिक वे रे आम रिसर्च करी था नेक्स्ट गाइडेंस एंड काउंसलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस गाइडेंस कहले कौन ना गोटे इंडिविजुअल को हेल्प प्रोवाइड करवा सपोर्ट देवा राइट पाथ देखा राइट डायरेक्शन देखा असिस्टेंट प्रोवाइड करवा ए प्रकार कार्य को गाइडेंस कहा जाए गाइडेंस होची गोटे व्यक्ति को हेल्प प्रोवाइड करवा सपोर्ट देवा कौन से प्रोब्लेम रो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा गाइडेंस कहा जाउची एवं यह को डिस्क्राइब करबा पई एजे जॉन्स कहते गाइडेंस इज असिस्टेंट गिवन टू ए इंडिविजुअल इन मेकिंग इंटेलिजेंट चॉइस एंड एडजस्टमेंट ना गाइडेंस होची गोटे असिस्टेंट बा सहयोग जहाँकि गोटे व्यक्ति को दिया जाए कौन करने ना इंटेलिजेंट चॉइस करने हो किंबा एडजस्टमेंट करने हो टाइप्स ऑफ गाइडेंस रे तीनोटी मुख्य टाइप्स रही अछि यह होची एजुकेशनल गाइडेंस वोकेशनल गाइडेंस थर्ड होची पर्सनल गाइडेंस एजुकेशनल गाइडेंस कहले कौन ना जो गाइडेंस रे एजुकेशन रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करा जाए ताकू एजुकेशनल गाइडेंस कहा जाए देन वोकेशनल गाइडेंस जो गाइडेंस रे वोकेशन किंबा जॉब रिलेटेड गाइडेंस प्रोवाइड करा जाए ताकू वोकेशनल गाइडेंस कहा जाए देन पर्सनल गाइडेंस कहले कौन ना गोटे इंडिविजुअल गोटे पर्सन को गाइडेंस प्रोवाइड करा गले याकू पर्सनल गाइडेंस कहा जाए नेक्स्ट काउंसलिंग काउंसलिंग कहले कौन ना काउंसलिंग होची गोटे ट्रेन पर्सन बा गोटे प्रोफेशनल व्यक्ति बा जने एक्सपर्ट ठारू हेल्प नेबा को काउंसलिंग कहा जाउची काउंसलिंग कौन ना जने प्रोफेशनल एक्सपर्ट एवं ट्रेन पर्सन ठारू हेल्प नेबा को काउंसलिंग कहा जाउची एही प्रक्रिया रे दुई जनकर इंपोर्टेंस रही जड़े होती काउंसिलर जे कि हेल्प प्रोवाइड करेंगे एवं आउ जड़े होती काउंसिली जे कि हेल्प नेबे टाइप्स ऑफ काउंसलिंग रे दुईटी तीनोटी इंपोर्टेंस टाइप्स रही अछि डायरेक्टिव काउंसलिंग नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इलेक्टिव काउंसलिंग डायरेक्टिव काउंसलिंग बीजी विलियमसन देइछन्ति याकू एवं यह काउंसिलर सेंट्रेड अटे एठारे काउंसिलर एक्टिव थांती एवं काउंसिली एठारे पैसिव रहे देन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग हेउची काउंसिली सेंट्रेड एवं एठारे काउंसिली एक्टिव रहे एवं काउंसिलर एठारे पैसिव रहे याकू कार्ल रोजर्स देइथिले देन इलेक्टिव काउंसलिंग याकू थॉर्न्स देइथिले एवं इलेक्टिव काउंसलिंग होचे डायरेक्टिव एवं नॉन डायरेक्टिव रो कॉम्बिनेशन को इलेक्टिव काउंसलिंग कहा जाए
देन नेक्स्ट किछि फुल फॉर्म देखिबा जहाँकि एग्जाम बहुत इम्पोर्टाट अटे एबीसी एबीसी कहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट देन AICTE कहले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन देन केप कहले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन देन CBCS कहले चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम देन CBSE कहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन देन डाइट कहले डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स देन दीक्षा digital infrastructure for knowledge sharing then ECCE early childhood care and education then ICT information and communication technology then HRD MHRD Ministry of Human Resource and Development then MOOC Massive Open Online Course, then NAC, National Assessment and Accreditations Council, then NCERT, National Council of Educational Research and Training, then NCF, National Curriculum Framework, then NCTE, National Council for Teachers Education, then NIOS, National Institution of Open Schooling, then ODL, Open Distance Learning, then RIE, Regional Institution of Education, then RAMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, then SSA, सर्व शिक्षा अभियान, then SCERT, State Council of Educational Research and Training, then UGC, University Grant Commission, then VEC, Village Education Committee. Okay, next टेलीग्राम रे समस्ते जॉइन हो जिवो एठारे अपडेट बा पीडीएफ तुमको मिली जिवो देन कौन से इश्यू किंबा प्रॉब्लम होउछि तेबे एजुकेशन शिक्षा @gmail.com पे मेल करिवो ओके आई होप कि क्लास टी तुमको हेल्पफुल होइतबो जदि क्लास टी हेल्प होइछि तेबे लाइक एवं शेयर निश्चित रूप रे करिवो एवं थैंक यू फॉर वाचिंग